أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي هب لي حكمي ولحقني بالصالحين واجعلني من المتوابين واجعلنا من المطهرين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب الجحيم وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال وأعوذ بك من همزات الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا. کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے پہلے کیا اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ مسلمان ہم کو بنایا. اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم پر اس نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اپنی پہچان دی، اپنے سے مانگنا سکھایا. اور وہ ذات عظیم ہے جس سے زمین اور آسمان کے ہر چیز مانگ رہی ہے. یسألون من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے. اس کے لیے آگے سوال کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. پوری کائنات اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہے اور اسی کے تابع ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتی ہو، لیکن ہم ان کی تسبیح سن نہیں سکتے. ساری کائنات اسی کے آگے جھکی اور سجدہ ریز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے. کیا ہم انسان اس کے لیے اللہ یہ ساری نعمتیں بنائی ہے، کیا وہی اس کا آگے نہ جھکے گا اور نہ وہی اس کے آگے نہ مانگے گا اور اس کی تسبیح نہ کرے گا، یا کیا اس کی فرما برداری کرے گا؟ یاد رکھو کہ ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، نہ ہم. سرکشی کرے اور اس کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت نہ کرے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں. کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نقصان نہیں. اسی لیے ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور سجدہ ریز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی ہے، کیونکہ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز بھی ہے اور تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے. لیکن ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، وہ چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے انسان. اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی مخلوقات بہت سی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور صدقہ کرتے رہنا، اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. جی، اس میں اس بات سے کیا پتہ چلتی ہمیں؟ بس بنی آدم یعنی انسان اللہ کے آگے جھکنے سے لاپرواہ کرتا، وہ اللہ کا اس نعمت کو نہیں یہ کرتا. اللہ انسان کے لیے کیا کیا نعمت بنا کر رکھا زمین میں آسمان میں، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ لالچی ہوا تھا. انسان ٹال مٹول کرتا رہتا. یہ پوری زمین، پورا آسمان، جو بھی چاند سورج سب کچھ، ہر چیز، پیپر سے بھی کپڑے سے بھی پورا بھی وہ ذکر کرتے رہتے. ان کا ذکر، ان کی تسبیح ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ہمارا ٹاپک کیا ہے آج الحمدللہ، یعنی نماز کے آداب. نماز کے آداب کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں گزری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. وہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صبر کے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو.
اس میں مطلب کیا ہے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ. نماز کے آداب میں نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھے. وضو کرتے تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے. بس جو شخص اپنا نور بڑھانا چاہتا ہے بڑھا سکتے ہیں. کیا ہے قیامت کے دن؟ یہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انسان جو بھی نماز پڑھتی ہیں وہ وضو پہلے کرتی ہیں. اگر جب مسواک کرے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. مسواک کرنا یہ سنت ہے. مسواک ہے تو برش کرنا بھی یہ سنت ہے. ایسا ہم کیسا پہچانا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے روب شان ہمیں جانے ٹائم کو کیسا پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہچانتے ہیں ہمارے پیشانی کے روشن وضو کے پانی سے، اور ہمارے جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں سے وہ روشن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے کہ ان کی امت زیادہ سے زیادہ وضو کرتی ہے. اسی لیے یہ حدیث گزری. صاف ستھرے اور سنجیدگی مذہب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے. اس سے مطلب کیا ہے؟ ہمیں جو پکاتے ہیں کرتے ہیں وہ ٹائم پر پہننے کے کپڑے پہنتے ہیں. اگرچہ وہ گندا ہوا، تھوڑے گندے ہوئے، اور نماز کے ٹائم پر کیا ایک اچھی سی لباس پہن کر اس میں نماز پڑھ کر پھر دوبارہ ٹائم بدلا کے ہمیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے حضور ہمیں کھڑے ہونے ٹائم پر ہمارا لباس بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 21. اے آدم کے بیٹوں، ہر نماز کے لیے موفق پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو. کیا ہے؟ ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے لباس کو صاف ستھرے رکھنا ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء کی آیت نمبر 103. مومنوں پر وقت کی پابندگی سے نماز فرض ہے. کیا ہے؟ نماز فرض ہے. کس پر؟ مومنوں پر. یہ ہمارے سب کو معلوم ہے یہ بات. نماز ہمارے پر فرض ہے، یہ سب کو معلوم ہے. کیا ہمیں وقت پر نماز ادا کرتے ہیں؟ ہماری نماز میں ہم دیکھنا چاہیے ہمیں وقت پر نماز ادا کرتے ہیں یا دیری سے ادا کرتے ہیں. اسی بات میں کیا ہے لکھا ہوا ہے مومنوں کے لیے، لکھو رکھو ہے کہ تمہارے پر فرض ہے، فرض نماز فرض ہے. ہر مسلمان پر بھی جب بھی وہ نماز کا اذان سنتا اس پر نماز فرض ہے. بچے پر جب وہ بالغ کی عمر آ جاتی، بچے پر، عورت پر، بوڑھی پر، سب پر بھی نماز فرض ہے. نماز میں کبھی بھی کوتاہی کرنا، نماز ہم پر فرض نہیں کہ سستی اختیار کرنا، یہ بات نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان پر نماز فرض ہے جب تک اس کی موت نہیں آئے. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ایک صحابہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھے اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے محبوب ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نماز کو وقت پر ادا کرنا. کیا ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کی وقت پر پابندی سے ادا کرنا. دیکھو اللہ کو پسندیدہ کام ہے یہ. ہمیں کیا کرتی ہیں اذان ہوتے رہتا ہے ہمیں گفتگو میں بیٹھ کر ایسا ہی رہتے ہیں، باتوں میں ضائع کرتی ہیں، ایسا دوستوں میں ضائع کرتی ہیں، ایسا سہیلیوں میں ضائع کرتی ہیں، ایسا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، کیونکہ نماز وقت پر پڑھنا اللہ کے پسندیدہ کام ہے، اللہ کو پسندیدہ کام ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں. کیا ہے؟ انسان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقرر وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع خضوع سے ادا کرے تو اللہ اس پر یہ حق ہے، اللہ کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے. دیکھو یہ مطلب کیا ہے؟
5 वक़्त की नमाज में वो ठीक से वज़ू करे, साफ सुथरा होकर खुशू व खुदू के तो अल्लाह की याद में नमाज पढ़े। नमाज पढ़े तो उसका अल्लाह पर क्या हक है उसका, उसके गुनाह सभी अल्लाह ताला बख्श देगा। और जिसने इन नमाज़ों में कोताही की तो अल्लाह अल्लाह पर उसकी मग़फ़िरत व नजात का कोई ज़िम्मेदारी नहीं। क्या इस ये बात से क्या मालूम होता? पहला बात क्या है, 5 वक़्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ना और वज़ू से रहना और खुशू-ख़ुज़ू से अदा करना, उसे क्या मतलब अल्लाह ताला क्या दिया, उसकी ज़िम्मेदारी क्या लिया? उसके गुनाह को माफ़ करने का ज़िम्मेदारी लिया। अगर जब कोताही कर को नमाज़ पढ़ा, उसकी मग़फ़िरत भी, उसकी नजासत भी की ज़िम्मेदारी अल्लाह पर नहीं, क्योंकि पहले बार क्या बोले अल्लाह ताला, उसकी जो नमाज़ पाबंदी से पढ़ा, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है कि उसके गुनाह को मैं बख्श दूँ। दोमा शख्स क्या है, वो उसकी मग़फ़िरत होंदे, उसकी नजात होंदे, अगरचे उसका नमाज़ सीधी नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह नहीं लेता। देखो ये आयत में हमें पता चला, इस पर हमें क्या होना, हमें नमाज़ पढ़नी, वक़्त पर नमाज़ नहीं पढ़नी। क्या वो नमाज़ अल्लाह को पहुँचता ज़रूर है? वक़्त पर नहीं पढ़ती, वो पढ़े तो भी एक ही, नहीं पढ़े तो भी एक ही। वो नमाज़ क्या ऐसी नमाज़ों से अल्लाह हमारी नमाज़ चाहता है? नहीं, अल्लाह को वो नमाज़ पसंद है, जो वक़्त के पाबंदी से खुशू-ख़ुज़ू और वज़ू से पाक होकर पढ़ना, वो नमाज़ अल्लाह को ज़रूरत है। ये कोताही से नमाज़ पढ़ना, आदमियाँ देखने के लिए नमाज़ पढ़ना, दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ना, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ना, ये नमाज़ अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। अगर उसे चाहे तो माफ़ी कर सकता, अगर उसे चाहे तो अज़ाब भी दे सकता। क्या है उसका ये भी बात आया देखो, चाहिए कि तो चाहे तो उसे अज़ाब दे, चाहे तो उसे बख्श दे। ऐसा नमाज़ वो सुस्ती से नमाज़ पढ़ रहा है, इस पर अल्लाह का ज़िम्मेदारी नहीं बनता, क्योंकि चाहे तो उसे नजात भी, उसकी मग़फ़िरत भी नहीं करता, चाहे तो माफ़ कर दे, नहीं चाहे तो माफ़ भी नहीं कर दे। इसीलिए हमें नमाज़ हमेशा जमात से पढ़े। अगर कभी जमात ना मिले तब भी फ़र्ज़ नमाज़ मस्जिद में ही पढ़े। ये मर्दाना के लिए है, जो भी मर्द घर में नमाज़ पढ़ते हैं, वो बाजमात नमाज़ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बाजमात पढ़ना मर्द पर फ़र्ज़ है, ये औरतों पर नहीं। अगरचे औरतें घर में मिलकर पढ़ना चाहती हैं, ऐसा जमात नमाज़ पढ़ने से बहुत सवाब है। बाजमात पढ़ने की कोशिश कीजिए। अलबत्ता सुन्नतें घर में पढ़ना भी अच्छा है, क्योंकि मर्दमा ने मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़ने के बाद में सुन्नतें, नफ़िल वग़ैरह घर में आकर पढ़ सकते हैं। घर में आकर पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, जो जो शख्स 40 दिन तक तकबीर वाली के साथ नमाज़ बाजमात पढ़े, वो दोज़ख और निफ़ाक़ दोनों से महफ़ूज़ रहेगा। देखो सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी खुशखबरी मर्दाना के लिए। क्या उन 40 दिन तक वो तकबीर के साथ, यानी अस्सलात वो क्या औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, तकबीर कहते हैं ना, वो तकबीर के बराबर मस्जिद में खड़े को वो नमाज़ पढ़े, बाजमात के साथ नमाज़ पढ़े 40 दिन तक, उस पर क्या होता है? ज़ोज़क उस पर निफ़ाक़ दो भी दोनों से भी महफ़ूज़ रहता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए कि अगर लोगों को नमाज़ बाजमात का अजर व सवाब मालूम होता तो वो हर हज़ार मजबूरियों के बावजूद भी जमात के लिए दौड़-दौड़ कर आते। क्योंकि जमात का सवाब इतना है, इसीलिए अगरचे वो मालूम होता तो जमात की नमाज़ का सवाब मालूम होता तो मर्दाना को हो और औरतों को भी हो। अगर जमात का सवाब मालूम होता तो उनको कितने भी हज़ार मुसीबतें हो तो भी वो लोग दौड़-दौड़ कर जमात की तरफ चले जाते। जमात की पहली सफ ऐसी है, जैसी फरिश्तों की सफ इतना इतना नमाज़ पढ़े। पहले सफ किसकी होती? फरिश्तों के सवाब की। इंतहाई नमाज़ पढ़ने से 2 आदमियों की बाजमात बेहतर है। यानी पहले सफ में नमाज़ पढ़ने का क्या सवाब है? फरिश्तों की सफ की जैसा है पहली सफ। इसीलिए
वो नमाज में ऐसा नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना आदमी लोग, इसलिए वो मस्जिद को जाना बहुत बेहतर है। और इंतहा क्या इसमें क्या है, एक आदमी नमाज पढ़ने से बाजमात यानी 2 आदमी भी नमाज पढ़ना बेहतर है। फिर फिर जितने आदमी ज़्यादा हो उतना ही बेहतर होगा। जितने आदमी ज़्यादा हो उतना ही बेहतर होगा। जमात खुदा के ज़्यादा महबूब होती है। जमात से पढ़ना खुदा का अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब तरीन चीज़ है। नमाज सुकून के साथ पढ़े और रुकू व सुजदा इत्मीनान के साथ कीजिए। रुकू से उठने के बाद इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाए, फिर सिजदे में जाए। इसी तरह दोनों सिजदों के दरमियान मुनासब वक़्फ़ा कीजिए। दोनों सजदों के दरमियान थोड़ा देर बैठ जाना। अब सिजदे से हमें उठने के बाद में थोड़ा देर बैठ जाना, ऐसा बैठ जाके ये दुआ पढ़ना। और दोनों सजनियों के दरमियान ये दुआ पढ़ लिया कीजिए। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अहदीनी, अल्लाहुम्मा अजबुरनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी, अल्लाहुम्मा रिज़क़नी। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में डाल देती हूँ ये इसका ये करो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा रहमनी, अल्लाहुम्मा अहदीनी, अल्लाहुम्मा अजबुरनी, अल्लाहुम्मा आफ़ीनी, अल्लाहुम्मा रिज़क़नी। 2 सिजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ना चाहिए। खुदाया तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, मुझे सीधा-सीधा राह चला, मेरी शख़्सियत खाली दूर फ़रमा, मुझे सलामती दे और मुझे रिज़्क़ अता कर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ में क्या है, बेहतरीन दुआ है। 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ना बेहतर, रिज़्क़ में भी फ़ायदा है और गुनाह भी माफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होती। ये बहुत सी फ़ज़ीलत दुआ है, ये पढ़ना चाहिए। ऐसे दुआ छोटे-छोटे दुआ नमाज़ में पढ़ने से बहुत बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज को अच्छी तरह अदा करेगा, ये गौर से सुनने की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाए? जो शख्स नमाज को अच्छी तरह अदा करेगा, नमाज उसे दुआ देती है। देखो नमाज कभी हम बात करती का हमें मालूम नहीं, क्या है इससे मालूम होता है, नमाज को जितनी अच्छी तरीके से हम अदा करते हैं, नमाज उतनी अच्छी तरह हमें दुआ देती देती है कि खुदा खुदा इस खुदा इसे इस तरह इस खुदा इसी तरह तेरी तेरी हिफाजत कर खुदा इसी तरह तेरी हिफाजत करे जिस तरह तू मेरी हिफाजत की। तो नमाज की हिफाजत हमें करती ही वो अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। नमाज में भी चोरी कर सकती कोई भी, देखो इसमें क्या मालूम होता, बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में कोई कोई नवा नमाज में कोई कैसे चोरी कर सकता है? उन्होंने क्वेश्चन किया, कौन? साहबा ने। नमाज में कोई भला कैसा चोरी करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, रुकू और सिजदा अधूरे अधूरे करने वाले। कौन? रुकू और सिजदा जल्दी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बोलना, ऐसा नमाज में चोरी होती, ऐसा नहीं। सुभान रब्बिल आला, उसका वर्ड का वर्ड हक अदा करना, उसका अल्फाज पूरे हमें अदा करना। इसीलिए वो जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होता, नमाज की चोरी हो जाती। इसी तरह हम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज में चोरी हो जाती। नमाज का हक अदा करना इत्मीनान और सुकून के साथ हमें अदा करना चाहिए। अजान की आवाज सुनते ही नमाज की तैयारी शुरू कीजिए। जब भी अजान की आवाज सुनते ही नमाज की तैयारी शुरू करना और वजू करके मस्जिद पहुंच जाए और खामोशी के साथ सफ में बैठकर जमात का इंतजार कीजिए। अजान सुनने के बाद सुस्ती और ताखिर करना और कसमसा होते हुए नमाज के लिए जाना, ये मुनाफिकीन की अलामत है। क्या? जब भी हमें अज़ान सुनते ही हमें अपनों से अलग हो जाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि
जब भी वो अपने बीवियों में, अपने अहल में, अपने जमात में बैठ रही, अजान सुनते ही वो फौरन अलग इख्तियार करती हैं। अलग क्या, वो फौरन जाके अपने वजू करती, वजू करने के फौरन वो मस्जिद में जाने की कोशिश करती। कोई भी हो उनसे दूर हो आते वो टाइम में, क्योंकि नमाज फर्ज है। ये मुनाफिकिन की अलामत क्या बताई इसमें, नमाज हुई तो भी वो अकामत तक हमें इंतजार करना, अकामत के बाद हमें वजू बनाना, अकामत हो जा को जमात होने के बाद में हमें नमाज पढ़ना, ये किसकी अलामत है? ये मुनाफिकिन की अलामत है। अजान भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा कीजिए। अजान पढ़ने के टाइम पर हमें उसके जवाब अल्लाहु अकबर बोलने टाइम पर हमें खामोशी से सुनना पहले, बाद में उसके जवाब देना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाद में वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो हमें खामोशी से सुनना, उसका जवाब देना। जब हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह कब बोलती, हमें क्या बोलना उसके जवाब में? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का बोल, ये तस्बीह पढ़ना। ऐसा वो अज़ान का पूरा हक हमें अदा करना। अज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाने का एक काम मुझे बता दे वो कबूल कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नमाज के लिए अजान दिया करो। देखो सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने का काम ये है क्या? नमाज के लिए अजान दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर मौजन की अजान जहां तक पहुंच जाए और जो उसकी आवाज सुनता है वो क़यामत में मौजन के हक में गवाही देता है। जो भी मौजन का आवाज सुनता है, उसकी आवाज कितनी दूर जाती है, वो सब लोग उसके हक में क़यामत के दिन गवाही देंगे कि ये अल्लाह की तरफ बुलाया, यानी अल्लाहु अकबर करके क्या अल्लाह बड़ा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज को। ऐसा कर कर एक मतलब अजान की मतलब है, वो मतलब को पकड़ कर वो सब गवा देती, क्योंकि ये शख्स बुलाया हमको नमाज के लिए कर कर वो गवाही देती हैं। जो शख्स जंगल में बकरियां चराता चराता हो और अजान का वक्त आ जाए तो ऊंची आवाज से अजा कहा तो जहां तक उसकी आवाज पहुंचे, कयामत के दिन सारी चीजें उसके हक में गवाही देगी। अगर सा कोई शख्स है, वो बकरियां चराने के लिए या जो भी ये करने के लिए वो जंगल में है, अगर खेत बाड़ी में है, उसे अजान का वक्त हो गया, वो बुलंद आवाज से जब अजान देता, जितने भी वो उधर के पानी हो, झाड़ हो, कोई भी जानवर हो, जो चीज भी उसकी आवाज अजान सुनती है, कितनी दूर उसकी अजान पहुंचती है, उसे भी क़यामत के दिन उसके हक में गवाही देती कि ये शख्स अजान दिया है, हमें इसकी आवाज सुने है, यानी सब हर चीज उसके हक में जवाब देती, गवाही देती। अगर आप इमाम हो तो तमाम आदब और शराइत से एहतमाम करते हुए नमाज पढ़ें और मुक्तदियों की सहूलत के लिहाज से रखा रखा हुआ अच्छा तरीका इमामत कीजिए। इमाम का क्या तरीका है? मुक्तदी का सहूलत देखकर वो किरात वो सूरे होंदे भी क्या होंदे पढ़ना चाहिए, यानी उनका ये नहीं करना कि तो ज्यादा जो वक्त में जो नमाज पढ़ना, ऐसी नमाज पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो इमाम अपने मुक्तदियों को अच्छी तरह नमाज पढ़ाते हैं और ये भी समझ कर पढ़ाते हैं कि हम मुक्तदियों की नमाज के जामिन ही, वो 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 इमाम को ये मालूम होना कि मैं ये मुक्तदी का तो मतलब क्या? नमाज पढ़ने वाले, पीछे सब में न, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले हर आदमी उसे मुक्तदी कहा जाता है, क्योंकि उनका सबकी जिम्मेदारी वो इमाम पर है। ये ध्यान में रखते हुए वो नमाज पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर से ये गलती करे तो सबकी गलती उस पर आ जाती। इसीलिए उन्हें अपनी मुक्तदियों की नमाज का अजर व सवाब मिलता है। अगर से सही पढ़ाए वो इमाम, उनका अजर सवाब भी उसे मिलता रहता, वो इमाम को मिलता रहता। इतना ही इतना ही इमाम को मिलता है, उतना ही इमाम को मिलता है, और मुक्तदियों के अजर और सवाब में भी कमी नहीं होती। इमाम को भी उतना ही अजर सवाब मिलता है और मुक्तदी की तरफ से, और मुक्तदी के अजर सवाब में कमी नहीं होता, क्योंकि उनको भी कमी नहीं होता, उनके अजर सवाब में भी
ان کا اجر، ان کے ثواب، ان کی نماز کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا، باجماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، نماز میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔